Last it, we were reading the story The Open Window, and in the last video we reached the story where the aunt cries. She starts crying. They have come. Here they are. They have come right at the time of tea. These were the words. Now let us see what happens further in the story. Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. A tired brown spaniel kept close at their heels. Noiselessly, they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk. I said, Bertie, why do you bound? How surprising it is. The guest, Mr. Newton, looks in a surprised notion towards the niece. She was already looking through the window, and when he turns around and looks outside, it was horrified to see that there emerged three figures. जैसा विवरण दिया गया था वैसी ही वो परछाइयां और विंडो की तरफ चली आ रही थी। उनके हाथों में गन थे और एक के कंधे पर रेनकोट था और स्पेनियल भी साथ में था। आज तो वो बात सच होने जा रही थी जो आंटी इतने दिन से कह रही थी, लेकिन मिस्टर न्यूटन के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। He was horrified completely. आइए जानते हैं आगे क्या होता है। Frampton grabbed wildly at his stick and hat. The hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. तो इस तरह से फ्रैम्पटन ने तो अपना स्टिक और हैट उठाने के बाद कब दरवाजे पर पहुंचे, कब ग्रेवल ड्राइव और फ्रंट गेट का गुजरना उनको बिल्कुल याद भी नहीं है। और सड़क पर एक साइकिलिस्ट अगर जल्दी से दौड़ करके एक तरफ नहीं हट जाता तो टक्कर कोई बचा नहीं सकता था। इतना तेज, इतना घबराए हुए फ्रैम्पटन वहां से दौड़े। आगे क्या होता है जानते हैं स्टोरी से। Here we are, my dear, said the bearer of the white Macintons, coming in through the window. Fairly Buddy,
but most of it is dry. Who was that who bolted out as we came up? तो इस तरह से एंट्री होती है विंडो से, और आते ही हस्बैंड साहब कहते हैं, डियर हम आ गए, और ये है आपका वाइट मैकिंटोश। और ये बताइए कि जब हम विंडो से आए तो कोई दरवाजे से दौड़ के बाहर चला गया, वो कौन था? अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। A most extraordinary man, a Mr. Newton, said Mrs. Appleton, could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. One would think he had seen a ghost. तो इस बात पर जब उन्होंने सवाल पूछा कि वो कौन थे जो दरवाजे से दौड़ते हुए गए हैं, तो मिसिस एपल्टन ने कहा, एक अजीब सा आदमी था जो अपनी बीमारी के अलावा दूसरी बात करना जानता ही नहीं है, और बिना गुड बाय बोले ऐसे ही दौड़ गया। आपको देखकर उसको ऐसा लगा जैसे भूत देख लिया हो। आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। I expect it was the spaniel, said the niece calmly. He told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of Ganges by a pack of pariah dogs and had to spend the night in a new dug grave with the creature snarling, grinning and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve. ये जो सवाल जिसके बारे में मिसिस एपल्टन ने जवाब दिया, नीस ने कुछ और कहा। नीस ने कहा कि वो आपसे डर के नहीं भागे, बल्कि वो स्पेनियल को देख के भागे हैं, क्योंकि वो कुत्तों से बहुत डरते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार गंगा किनारे एक शमशान घाट में उनके साथ ऐसा हुआ था कि कुत्तों ने उनको घेर लिया था और उनको पूरी रात शमशान घाट में बितानी पड़ी थी, और वो गड्ढे के ग्रेव के अंदर थे और कुत्ते ऊपर से घूर रहे थे। पूरी रात जिस आदमी ने ऐसे बिताई हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुत्ते देखने के बाद वो उसकी हालत क्या होगी। ऐसा कहा नीस ने। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज आवर स्पेशलिटी, और यही तो स्पेशलिटी है उनकी, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस। आपको ये कहानी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ साकी के बारे में, जो इस स्टोरी के राइटर हैं। साकी इनका पेन नेम है, इनका रियल नेम तो हेक्टर हग मुनरो है। ये हेक्टर हग मुनरो के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप इनकी कहानियां पढ़ोगे, इनके नॉवेल्स पढ़ोगे, तो आप एक बात आप भी समझ जाओगे, अभी बड़े होके आप इनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ने वाले हो। ही वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर। मुझे एक आध व्यक्ति का ही याद आता है जो इनसे बड़े स्टोरी टेलर हो। ऑफ कोर्स हमारी हिंदी में बात करूं तो मुंशी प्रेमचंद, लेकिन प्रेमचंद की और इनकी कहानियों में एक अलग अंदाज है। ये हमेशा सरप्राइजेज जोड़ते हैं। प्रेमचंद जी की कहानियों में गरीबी, शिक्षा ये जुड़ा हुआ होता था। इनकी कहानी में जासूसी, सरप्राइजेज बहुत मिलते हैं और कहानी को इतना सुंदर मोड़ दे देते हैं कि नॉर्मली रीडर्स या लिसनर्स अवाक रह जाते हैं इनकी कहानियां सुन सुन करके।
आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वो अचानक कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट कहानी में डाल देते हैं। तो जब भी आपको समय मिले, और अब तो समय समय है, कोरोना काल है, तो आप जरूर इनका 1-2 नॉवल पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इनकी स्टोरीज में जो मिस्चीवियस सैटिराइज्ड की गई कहानियां हैं, दे विल डिलाइट यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।